Good evening, folks. My name is Kunal Shangani. Welcome to my show or YouTube channel. I hope you are fine at your place. I'm also fine. So, today I would like to speak, and I'm gonna speak on my CFA Level 1 journey. So, slowly and gradually, I will tell you each and every point of my CFA Level 1 journey and what is CFA all about. So, let's first start with what is CFA. So, the basic definition of CFA is Chartered Financial Analyst. So if you want to do specialization in finance, so CFA is the best course for you. You should pursue CFA. If you want to uh, good and if you want to become good and if you are good and if you have some interest in finance in or finance domain or anything related to finance, so you should pursue. So that is all about CFA and talking about the subjects. So there are 10 subjects in CFA. So first is means it is doesn't means if you don't have any accounts knowledge, so it is not compulsory that you should have some accounts knowledge or you should have some knowledge of accounts if you want to pursue CFA. Means uh, basic and some knowledge of financial analysis. Means if you know how to read the financial statements and how to do the analysis of financial statements, basic means know the fundamentals of accounts, so you can easily means CFA will be cakewalk for you. And if you are an economic student and you will tell that I'm not good in maths, so it is good if you are not a account student, if you are not fluent, if you are not good in maths, so that then only and then too you can pursue or you can opt for CFA if you don't know about maths. So I clarify all those misconceptions which students have while they are pursuing or they want to pursue CFA, but they won't because of these misconceptions or because of these stereotypes. So, as I was telling you the 10 subjects of CFA, so the first one is FA, which is financial statement analysis, means in that you have to analyze the ratios, financial statements, and how to read the various financial statements like a balance sheet, income statement, cash flow statement, annual report. Means try to get the information from those statements and use those information in which will help you in financial analysis. So next is economics, in that you might have heard about microeconomics. Macroeconomics means all demand, supply, utility, all those, and macro aggregate demand, international trade, foreign exchange reserves, all about that. Means if you are economic student, you know more about me, you more about economic subjects than me, because I'm an account student. I have done my bachelor's in accountancy. So if you are an economic student, you know more. So economic subjects will be cup of tea for you. uh, and third subject is quants, maybe quantitative analysis, in which you max concepts will be used, not more. That means you have in 12th or 11th we have done a derivatives integration. Means बच्चों को बहुत डर लगता था कि means I'm also a 12th student, oh, I'm also a max student. uh, Means I have taken max in 11th and 12th on my junior college. So many of the friends बहुत डरते थे कि max से कि derivatives है, integration है. So we are not going to use those concepts or those derivatives or integration in CFA. Means simple basic mathematical rules and probability concepts हम use करेंगे quantitative analysis में. Means it is a medium which will help you to find out the analysis or which will help you to do analysis. So quants, economics, FA or FSA will help you to do analysis. And next is means there are four methods of there are four areas which will help you. First is FA, financial statement analysis. Second one is economics. Third, quantitative. This fourth is corporate issuers. Means in that you will come to know about the how governance is going on in the company. So before taking any decision, because suppose I'm an investor, I want to invest in some XYZ company, so I have to find out what is going on in that company. Means what management thinks about the company, what employees are thinking about, how the relationship between management and employees, relationship between investors or shareholders or board of directors and the employees. So those matters a lot while you are investing in some company. Means you
हम रेंडमली किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये मैटर भी करता है. एंड देयर आर ऑल्सो 3 अदर फैक्टर्स, मीन्स environmental factors, political factors, social factors, which will influence your decision to whether to invest or not. So ये हम सीखेंगे कॉर्पोरेट इशूअर्स में, ये हम पढ़ेंगे. सॉरी, तो आई हैव डन विथ 4 सब्जेक्ट्स: FA फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इकोनॉमिक्स सेकंड, थर्ड कॉर्पोरेट इशूअर, फोर्थ quantitative analysis. Now, moving to the other subjects, like first is equity. So in that we will learn about how to value company, means valuation part सीखेंगे इसमें. तो completely about the shares, how to do fundamental analysis, technical analysis, all those means हम सब सीखेंगे equity के बारे में. shares, dividend क्या होता है, ये सब क्या होता है, means bonus shares, ये सब. Then next subject is derivatives. You might have heard about the derivatives. There are 4 types of derivatives: forward, futures, options, swaps. So in that we will learn about these 4 derivatives and what is derivatives, how to value derivatives. Next is fixed income. Fixed income is more vast subject, means ज़्यादा vast है, means ज़्यादा you will get more knowledge about the fixed income when you have a look of fixed income subject. So means very interesting subject. I liked that subject very much. Then the 8th one is four main methods or areas or factors which will help you to do analysis. We are done with that. 3 securities: equity, derivatives, fixed income. And a 4th security subject is like alternative investment. Means apart from traditional investment एवेन्यूज और सोर्सेज, हमारे पास कौन से ऑप्शन हैं जहाँ पर अपना हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो पहला है कि रियल एस्टेट, लाइक कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शन साइट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड फार्म जो हम प्रोड्यूस करते हैं फार्मर्स, उसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं. सो प्राइवेट एक्विटी, हेज फंड, रियल एस्टेट, रियल गुड्स में. So those are the alternative investments where we can invest our money apart from traditional investments. So, and if you see in foreign countries, the scope of alternative investment is huge. If you master this area, so you will have you will achieve wonders in, you will find much more scope in foreign countries if you master these skills. Or if you are a hedge fund portfolio, or if you can if you can manage a portfolio of hedge fund, and if you are a hedge fund portfolio manager, so you can mint money like nothing. So now we are done with 8 subjects. 9th is actually I'm missing something. Yes, 9th is bunch of all those 4 securities. We have done equity, derivatives, fixed income, alternative. So 5th is, or 9th is, sorry, portfolio management. इसमें हम सीखेंगे कि पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करना है, उसमें रिस्क को कैसे मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज द रिटर्न्स, एवरेज रिटर्न्स, ऑल एंड दोज रिस्क कैसे मेजर करेंगे. सो वो सब फैक्टर्स हम सीखेंगे इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में. मीन्स इन CFA लेवल 1 वी लर्न लिटिल बिट अबाउट portfolio management, but in CFA level 3 there's a vast syllabus of portfolio management. Means level 3 is completely related or completely about portfolio management. Now the last but not the least is ethics. See, मीन्स आपको पसंद आएगा, सपोज आपको कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो अगर जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी एथिक्स फॉलो करके, सब लीगल रूल्स, सब जो भी प्रोसीजर है सब फॉलो करके आपका पैसा अच्छे से यूज़ कर रही है, तो आप तभी जाके उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, राइट. तो यू नीड दैट वेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, दैट कंपनी और दैट फर्म और दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो सम काइंड ऑफ एथिक्स. सो ये CFA जो इंस्टीट्यूट है वो भी बहुत एम्फसाइज करती है एथिक्स पे. मीन्स आप अगर एथिक्स फॉलो नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है बहुत सारी, एज अ स्टूडेंट भी, एज अ मेंबर ऑफ द CFA इंस्टीट्यूट, और इफ़ यू हैव having a own firm or own office, whatever it would be. So ethics play a very vital role in CFA. इसका सिलेबस भी बहुत है, तीनों हम लेवल में CFA की जो लेवल्स हैं उसमें हम एथिक्स का वास्ट सिलेबस होता है, और CFA इंस्टीट्यूट पुट मोर एम्फसाइज ऑन एथिक्स सब्जेक्ट इन रिगार्ड्स टू कि आपको पासिंग रेट में इफेक्ट होता है कि आप दूसरे सब्जेक्ट में कम मार्क्स चलेगा, बट अगर इसमें कम आ गया तो आपका क्लियर नहीं होगा CFA. तो वी हैव टू वर्क हार्ड इन एथिक्स सब्जेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट्स. 10 सब्जेक्ट्स से हमको 10 सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं. 10 ही में हमको पास होना है नहीं होना है वो दूसरी बात है, बट
ओके ये 10 सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं सी एफ ए में थ्रू। एंड इन सी एफ ए देर आर 3 लेवल्स, जैसे सी ए में 3 लेवल्स होते हैं, इसमें भी 3 लेवल्स हैं, तीनों का कुछ नाम नहीं है, सी एफ ए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है। सो in all 3 levels subjects remain same, this but the weightage, which is the thing, doesn't remain constant, which keeps on changing throughout the levels. level 1 में जैसे कुछ सब्जेक्ट का अगर वेटेज ज़्यादा होगा तो लेवल 2 में उसका कम होगा। तो as I said earlier that portfolio management has a highest weightage in level 3, so ऐसे weightage चेंज होगा but subjects remain the same in all 3 levels. so अगर हम कभी कर सकते हैं CFA, if पहले जब मैं कर रहा था CFA तो ऐसा रूल था कि ग्रेजुएशन के आखिरी साल में, मीन्स इफ़ यू आर इन थर्ड ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन और लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, सब किसी कोर्स में और किसी डोमेन में 4 साल का ग्रेजुएशन होता है। सो इफ़ यू आर इन द लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन सो यू कैन परस्यू और यू कैन सिट फॉर एग्जामिनेशन। बट अभी ऐसा हो गया है कि आप अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में भी हैं तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और सेकेंड ईयर में आप एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं। मीन्स नाउ यू कैन स्टार्ट अर्ली, मीन्स आपको 12th के बाद मालूम पड़ गया कि मेरे को फाइनेंस फील्ड में अपना स्पेशल, आई वांट टू डू स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फील्ड एंड आई वांट टू डेफिनेटली डू दिस कोर्स। सो फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हम कर सकते हैं। पहले हमको फाइनल ईयर तक वेट करना पड़ता था, बट नाउ वी कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ईयर के साथ साथ हम लोग पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में हम एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। सो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ मीन्स ये हो गया कि हम कब एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं, कब एग्जाम दे सकते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन्स यू should have one passport, you should carry one passport, international passport. Please listen this words carefully, international passport, because जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो भी आपको जो डॉक्यूमेंट होगा वो पासपोर्ट ही चेक करेंगे। सो यू नीड टू कैरी और यू हैव टू कैरी, यू हैव टू मीन्स आपके पास होना चाहिए इंटरनेशनल पासपोर्ट कट शॉर्ट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज CFA इन ऑल। मीन्स 3 लेवल होती है, 10 सब्जेक्ट्स बता दिए आपको मैंने, कब आप क्या स्टार्ट कर सकते हो। एंड यस एक बात मैं भूल गया बताना आपको कि सपोज आपका 3 लेवल्स कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपके नाम के आगे CFA नहीं आएगा। मीन्स आपको उनको जो CFA इंस्टीट्यूट हैं उनको आपको 4 ईयर्स का या कुछ हार्स का होता है वर्किंग एक्सपीरियंस। आप CFA के इंस्टीट्यूट पे वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, वहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा। कुछ रैंडम या कुछ अप्रॉक्सीमेटली 300 या 350 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ता है। एंड आपको एवरी ईयर या कुछ पीरियडिकली कुछ आपको मेंबरशिप फीस पे करना होता है इंस्टीट्यूट को, तब जाके आपको वो आपके नाम के आगे CFA आएगा। ऐसा नहीं कि आपने तीनों लेवल क्लियर किया तो देन देयर विल बी अ प्रीफिक्स इन योर नेम दैट CFA मिस्टर कुणाल शांगानी, नो। और एक और मीन्स ड्रॉबैक नहीं कहेंगे कि एक एज कम्पेयर टू CA कोर्स इसमें एक ड्रॉबैक है कि आपको जॉब खुद ढूंढना पड़ता है, इंस्टीट्यूट की तरफ से जॉब नहीं मिलता है आपको जैसे आप द मोमेंट यू क्लियर विथ योर ऑल 3 लेवल्स ऑफ CFA आपको खुद जाना पड़ेगा जॉब ढूंढने के लिए। ओके, एंड मेंबरशिप का भी हो गया। अभी बात करते हैं मेरे जर्नी के बारे में। सो ऑन 28 मार्च 2023 आई सक्सेसफुली क्लियर माई CFA level 1. Now I am appearing और now I am preparing for my CFA level 2. So मैंने फेब में अपना एग्ज़ाम दिया, 16 फेब आई गेव माई CFA level 1 एग्ज़ाम। मैंने अपना एग्ज़ाम नवंबर में बुक किया। आप अपनी लोकेशन के हिसाब से सेंटर बुक कर सकते हो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। जो आपको सेंटर नियर बाय लगे तो वो आप सेंटर बुक करके अपना एग्ज़ाम डेट, वो जो एक डेडलाइंस होती हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स फॉर दैट यू हैव टू मेक योर सेल्फ अप टू डेट विथ all those curriculum, all those deadlines which is uploaded on upload on the CFA institute और वेबसाइट। सो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको रेगुलर चेक करना पड़ेगा CFA इंस्टीट्यूट का वेबसाइट जो भी है। सो मैंने फेब में अपना एग्ज़ाम दिया। ओके, नाउ मीन्स आई इन 2022 आई क्लियर माई फाइनल ईयर। सो एज मेरे एग्ज़ाम्स के डेट आगे, मेरे मई में एग्ज़ाम्स थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स थे बिकॉज ऑफ कोविड। I gave online exams. So before exams, we got a 1 month of leave from our college for study. Then अभी online exams थे तो इतना studies का pressure था नहीं. So I was deciding what to do. Means whether to go for CFA or there was an idea in my mind or running in my mind that I should pursue ACCA. What is ACCA? That is different. Don't focus on that. But I was confused between CFA and ACCA. But after lot of struggle and not struggle means lot of inquiry or doing research about CFA and ACCA,
I came into a common conclusion or one conclusion that I should pursue CFA because I liked the subjects. I liked that 10 subjects. So that's why I pursue, and means during that only I started investing money in stock market. So वहाँ से भी मुझे वो लगा कि अभी स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो वहाँ पर ही करना है. तो फाइनेंस में इंटरेस्ट लगा. वो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में फाइनेंस में सब्जेक्ट्स भी थे वैसे फाइनल ईयर में. फाइनेंशियल कुछ मैनेजमेंट, यस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स था, मीन्स कुछ एक सब्जेक्ट था जो 2-3 सब्जेक्ट थे जिससे मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ फाइनेंस में. तभी मेरे 60% मेरे को लगा था कि मैं CFA करना चाहिए, 40% ECC में. ऐसा मेरा डाउटफुल था. बट आफ्टर सम रिसर्च एंड सम पीरियड ऑफ सेल्फ एनालाइजेशन मैंने CFA ऑप्ट करने का डिसीजन लिया. एंड जैसे ही मेरे मई में एग्ज़ाम हो गए तो मैंने क्लासेस के लिए रिसर्च करना शुरू कर दिया कि क्या कौन सी क्लासेस अच्छी हैं CFA के लिए. कि और इसके बाद अब ऐसा डाउट होने लगा कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहिए कि ऑफलाइन क्लास लेना चाहिए. सो माई एल्डर सिस्टर एडवाइस मी टू कि पहले तू रिवाइज तो कर, पहले अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर. इफ़ यू नीड कि क्लास तेरे को लेना जरूरी है या कौन सा लेगा ऑफलाइन ऑनलाइन तेरे को बाद में समझ में आएगा, तो पहले पढ़ना स्टार्ट कर, फिर जाके सोच क्लास लेना है कि नहीं लेना है या कौन सा लेना है ऑनलाइन की ऑफलाइन. तो मैंने वही किया. मई में मेरे एग्ज़ाम्स थे. फिर मई एंड में मैं थोड़ा चिल किया एंड थोड़ा टाइम स्पेंड किया, एंजॉय किया. जून एंड में मैंने अपना थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट किया. बुक्स सॉफ्ट कॉपी मैंने लिए. वो बात करेंगे कौन से बुक्स आपको लेनी चाहिए या कौन सा पब्लिशर्स आपको फॉलो करना चाहिए, उस पर भी आएंगे. तो मैंने बता देता हूँ अभी. तो एक तो करिकुलम होता है. एक करिकुलम है जो हमको अगर आप एग्जाम्स वेबसाइट पे लॉग इन करोगे तो यू विल गेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ओनली दैट करिकुलम. एंड करिकुलम इज़ वेरी वास्ट. मीन्स उसका जो मोटे मोटे बुक्स होते हैं. एंड if you are not good and if you're not comfortable with curriculum, then go for Schweizers, Kaplan Schweizers. I follow that. मैंने वही यूज़ किया था, Kaplan Schweizers. एंड सपोज आपको भी डाउट आता है या Kaplan Schweizers में वो इतना सपोज कि डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर करिकुलम. बट पूरे सिलेबस के लिए फॉर ऑल 10 सब्जेक्ट्स के लिए करिकुलम फॉलो करना मीन्स आई वोंट सजेस्ट यू. If you want, you can, but I won't suggest you to go for all subjects for curriculum. Means go to curriculum for all those subjects. Better Kaplan Schweizers परचेज कर लो, मार्केट में मिल जाता है. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर लूँगा या कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर लूँगा कि कहाँ से आपको मिल जाएगा वो बुक्स, या करिकुलम भी या Kaplan Schweizers बुक्स कौन सा भी, वो मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा डिस्क्रिप्शन में. सो ये बुक्स के बारे में हो गया. तो ये बुक्स मैंने पहले सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि लेटेस्ट बुक वर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. आई कॉन्टेक्टेड विद दैट पब्लिश provider. He told me that the current change syllabus जो बुक्स थे वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में. It will be available. He told me that it will be available mid October, November. So means I was in June, July. So I couldn't waste my time. So मैंने सॉफ्ट कॉपी लिया लास्ट ईयर के, वहाँ से पढ़ना उनका. I took a print out of that. फिर मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया. जुलाई मिड या जुलाई एंड से 15-20 days सेल्फ स्टडी किया. बिफोर दैट यस आई फॉरगॉट वन थिंग दैट की फीस जो होती है इसकी डॉलर्स में होती है. एंड सो मीन्स डॉलर में होती है तो आपको मालूम होगा कि कितनी महंगी होगी. सो आई पेड इन लैक्स, समथिंग इन 1.25 lakhs फॉर लेवल 1 ओनली, इंक्लूडिंग बुक्स एंड क्लासेस एज वेल. एंड कैलकुलेटर आपको वहाँ से मिल जाएगा जहाँ से बुक्स खरीदोगे, तो मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. एंड CFA इंस्टीट्यूट का जो भी लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. डोंट नीड टू टेक टेंशन अबाउट इट. एंड क्या बोल रहा था मैं, स्कॉलरशिप. यस, फीस बहुत है तो अभी इंस्टीट्यूट जो है हमको एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है लाइक इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज हमारा $1 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 80-85 रुपीज़ है. ओके, लेट्स टेक 80 रुपीज़. सो वी ऑल कैन नॉट अफोर्ड दिस मच अमाउंट. सो इफ आई वॉन्ट टू परस्यू बट बिकॉज ऑफ हाई प्राइस मैं परस्यू नहीं करूँगा. दैट्स वाई CFA इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कैंडिडेट्स दिस बेटर अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन ऑफ स्कॉलरशिप. वो स्कॉलरशिप आपको एक बस उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं आपको फॉलो करनी पड़ती हैं. अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी फ़ीस बहुत ही कम हो जाती है. मीन्स नॉर्मल फीस है समथिंग इन डॉलर्स $1,200-$1,300, बट अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है देन द फीस विल बी रिड्यूस टू $250 और $300 एंड प्लस एडिशनल GST. वो सब आपको ठीक है. सो ये स्कॉलरशिप का फ़ायदा है. तो मीन्स मैंने फॉर्म फिल किया था मई एंड में. यस, दैट्स वाई मीन्स मैं भूल गया आपको बताना कि मई एंड में जैसे मेरे 12th, सॉरी नॉट 12th,
ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हो गए थे, सो आई अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप के लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। उस एप्लीकेशन में आपको एक लेटर भी लिखना होगा, नॉट लेटर, एक ऐसे फॉर्मेट में जिसका आपको अपने बारे में सब इन्फॉर्मेशन को देनी पड़ती है, लाइक कि हम आपको स्कॉलरशिप क्यों दें, वाई शुड वी गिव यू स्कॉलरशिप। सो आपको अपने बारे में उधर एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैंने ये हासिल किया है, मैंने ये किया है, समथिंग लाइक दिस। If your application will be liked from CFA Institute, if they like your application, so they will grant you scholarship. If don't, एक अदर ऑप्शन भी है, अगर आप स्कॉलरशिप की वजह से वो डेडलाइन आपसे मिस हो जाती है, क्योंकि स्कॉलरशिप की रिजल्ट आफ्टर 1 मंथ या 45 डेज के बाद आती है, तो उसकी वजह से बिकॉज ऑफ स्कॉलरशिप इफ़ यू मिस्ड योर डेडलाइन, तो आपको CFA इंस्टीट्यूट ये भी ऑप्शन देता है कि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो मेरी डेडलाइन थी अगस्त तक, बट रिजल्ट लेट आने की वजह से मैं फॉर्म फिल नहीं कर पाया, तो मुझे नवंबर तक ऑप्शन दिया गया। अब नवंबर तक 8 या 10 नवंबर तक आप फॉर्म एंड फीस पे कर सकते हैं। मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला, मुझे ये एडवांटेज मिला। ओके, तो ये डेडलाइन भी होती है कि फर्स्ट अर्ली डेडलाइन, फिर नेक्स्ट डेडलाइन, वो लास्ट होती है, तो 2 डेडलाइन होती है, उससे आपकी फीस वेरी करती है बस, और कुछ नहीं है। अगर अर्ली फीस पे करोगे या अर्ली डेडलाइन पे फीस पे करोगे तो आपको फीस कम पे करना पड़ेगा, लाइक $700 एक्सक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फीस, जो आपको सिर्फ लेवल 1 में पे करनी होती है, नॉट इन लेवल 2 एंड लेवल 3। एंड अगर आप लेट फीस पे करते हो तो आपको $900 पे करना पड़ता है। ये सब अप्रॉक्सिमेट नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जैक्ट फिगर्स क्या है आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। प्लीज़ रेफर वेबसाइट, मीन्स आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, प्लीज़ रेफर वेबसाइट इफ़ यू वांट टू परस्यू। अगर आप आज डिसाइड करते हो कि मेरे को CFA परस्यू करना है, सो आई विश एंड आई विल सजेस्ट यू टू रेफर एंड टू कीप योर सेल्फ अपडेट विद CFA वेबसाइट, बिकॉज उनका कोई हर दिन नया अपडेट या हर वीक में अपडेट आता रहता है, तो आपको रेफर करना चाहिए। ओके, वो हो गया। सो मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, स्कॉलरशिप नहीं मिला, तो मुझे ये लेट फीस पे करने का एक ऑप्शन उन्होंने मुझे एडवांटेज दिया। सो स्कॉलरशिप नहीं मिला, जुलाई में रिजल्ट आया, मेरा नहीं मिला, तो अगस्त में मेरा था, तो बट मैं फ़ीस पे नहीं कर पाया, रिजल्ट आई तो फीस पे नहीं हुआ मेरा, कुछ था, तो मुझे नवंबर तक फीस पे करने का एक एडवांटेज मिला। देन जुलाई एंड में मैंने 15-20 डेज आई डिड सेल्फ स्टडी, फिर आई डिसाइडेड टू टेक अ क्लास, देन आई टुक अश्विनी बजाज क्लासेस, वो जो ऑनलाइन थे मैंने ऑनलाइन लिए, मैंने आई पेड सम अमाउंट, तो उन्होंने मुझे पेन ड्राइव सेंड किया घर पे कुरियर ने, एंड मुझे लिंक भेजा सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करने का, मैंने डाउनलोड किया, एक और लिंक सेंड किया जिसमें लेक्चर्स थे, सब रिकॉर्ड लेक्चर्स थे, तो मैंने विद द हेल्प ऑफ दैट मैंने अपनी पढ़ाई फर्दर स्टार्ट की। मीन्स अगस्त फर्स्ट वीक में मेरे को सब प्रोवाइड किया गया, पेन ड्राइव लिंक, लेक्चर लिंक्स, सॉफ्टवेयर लिंक, एंड वो सब मुझे उन्होंने गाइड किया कि कैसे यूज़ करना है, तो यू डोंट नीड टू टेक केयर अबाउट इट। अगर आपको अश्विनी बजाज क्लास लेना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा। मीन्स ऐसे बहुत सारे क्लास हैं ऑनलाइन, आप गूगल पे सर्च कर लेंगे तो मिले, आपको मालूम पड़ जाएगा। संजय सराफ का भी एक सर है, वो भी बेस्ट है, मैंने उनका भी यूट्यूब पे वीडियोस देखा था बीच में, अगर मेरे को डाउट हुआ तो। फिनट्री है, यू वर्ल्ड है, मीन्स मैनी पब्लिशर्स एंड मैनी मीन्स वेज एंड कि क्या बोलते हैं कि आपको हेल्प करेंगे थ्रू आउट योर CFA लेवल 1 या CFA जर्नी। तो डोंट स्टिक विद करिकुलम ओनली एंड डोंट स्टिक विद अश्विनी बजाज एंड कि कैप्लन स्टेजर्स पे, किस पे भी स्टिक मत रहो। मैंने क्लासेस अश्विनी के लिए थे, मैंने कैप्लन के बुक्स लिए थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने करिकुलम पे ध्यान नहीं दिया या मैंने किसी और का यूटिलाइज नहीं किया। आपको डाउट है तो यू कैन ऑप्ट फॉर एनीथिंग, इट इज़ अवेलेबल इन यूट्यूब, मीन्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट के वीडियोस होते हैं, तो आप उससे अपना एक्सपीरियंस या नॉलेज एक्सपांड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑल दोज रिसोर्सेज। So don't stick or don't be limited with the resources. Resources are unlimited, available for you. Okay. So अभी मैंने 3 महीने लगाए सिलेबस पूरे करने के लिए, लाइक वीडियोस जो मुझे सेंड किए गए थे वो मैंने 3 मंथ्स लगाए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। एट द एंड ऑफ अक्टूबर आई कंप्लीटेड विथ माई ऑल द लेक्चर्स इन वन टाइम रिविजन। मैंने क्या फॉलो किया था कि वीडियोस, फिर बुक से रिविजन, देन करिकुलम के मैं बैक साइड जो होते हैं वो MCQ सॉल्व करूँगा। तो मैंने ये पैटर्न फॉलो किया, तो विद इन 3 मंथ्स आई कंप्लीटेड विद ऑल द वीडियोस एंड वन टाइम रिविजन ऑफ सिलेबस। इन नवंबर व्हाट आई डिड, मीन्स मैंने गलत किया, मुझे लगता है मैंने ये गलत किया कि मैंने फिर से बुक्स का रिविजन किया, फिर से मैंने लाइक 15 to 20 डेज स्पेंड किए अपने फिर से वो कैप्लन के बुक्स रिविजन करने के लिए। तो ऐसा मत करना, बेटर इफ़ यू आर डन विथ योर लेक्चर्स, वीडियोज़ एंड ऑल दोज पार्ट, सो बी मीन्स ये बात अपने दिमाग में डाल दो कि जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करोगे उतना आपका प्रैक्टिस ज़्यादा होगा, उतना आपको हेल्प करेगा, आपके चांसेस इंक्रीज करेगा लेवल पास करने का। सो डोंट
मग अप द थिंग्स, डोंट मग अप द ऑल दो सब्जेक्ट्स। थियोरी में क्या है, ये फॉर्मूलाज हैं, मग अप करने की नीड नहीं है। आपको समझना है और एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में बताया आपको कि वीडियोस देखो, बुक से रेफर करो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। बट इन नवंबर मैं बोलते हैं ना, वो आई मिस द ट्रैक। 15-20 डेज मैंने वेस्ट किया, बुक्स को मगअप किया, कॉन्सेप्ट्स को मगअप करने का ट्राई किया। एट लास्ट मुझसे नहीं हुआ। सो 20th और 25th नवंबर को आई रियलाइज्ड, मीन्स हम गलती से सीखते हैं अपने, तो मैंने आई रियलाइज दैट आई वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग बिकॉज आई वॉज नॉट सीइंग एनी चेंजेस, एनी मीन्स आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट दैट मैं क्लियर कर पाऊंगा CFA लेवल, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि मैं कॉन्सेप्ट मुझे याद ही नहीं हो रहे, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू मग अप ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स। आई वॉज नॉट यूजिंग माई ब्रेन बिकॉज आई वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। सो उससे मैंने सीख लिया और मैंने दिसंबर में स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। मैंने फिर से करिकुलम के क्वेश्चन सॉल्व किए, कैप्लन के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इन नवंबर जब मैं अपना फीस पे किया, रजिस्टर किया, तो मुझे इंस्टीट्यूट की तरफ से अराउंड 2500 क्वेश्चंस मिले। कैंडिडेट रिसोर्सेज बोलते हैं उसको, कैंडिडेट रिसोर्सेज। आई विल रिपीट, कैंडिडेट रिसोर्सेज। उसमें आपको अराउंड 2000 to 2500 क्वेश्चंस मिलते हैं। एडिशनली यू विल गेट 2 फ्री मॉक्स। सो दिसंबर में मैंने वो सब क्वेश्चन सॉल्व की। 10th जैन तक मैंने कैंडिडेट रिसोर्स ख़त्म किए। फिर मैंने यू वर्ल्ड के क्वेश्चन सॉल्व किए। यू वर्ल्ड ने मुझे बहुत हेल्प किया। मीन्स मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने पर्सनली यू वर्ल्ड भी फ्री था, यू वर्ल्ड के मैंने लिंक पे जाके रजिस्टर किया, तो मुझे वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस अराउंड 2000 क्वेश्चंस मिले। पूरे नहीं किए मैंने, जिसमें मुझे डाउट था, जो सब्जेक्ट्स में मैं वीक था, मैंने उसके क्वेश्चंस फिर से सॉल्व किए। तो इन सब चीज़ों ने मुझे हेल्प किया। फिर आफ्टर 20th जैन मैंने एक मॉक देना स्टार्ट किया। मैंने एक फर्स्ट मॉक दिया, इंस्टीट्यूट का मॉक दिया। सॉरी फॉर द पॉज। आई वॉज टेलिंग दैट कि Jan 20 को मैंने सब MCQ सॉल्व करना हो गया मेरा। देन आई थॉट दैट आई शुड सॉल्व एंड आई शुड गिव वन मॉक। देन मैंने इंस्टीट्यूट का पहला मॉक दिया, उसमें मेरा परफॉर्मेंस एवरेज था। फिर मैंने आफ्टर 2-3 डेज एक और मॉक दिया। सो मीन्स इन टोटल मैंने 4 मॉक्स दिए। देन 4 मॉक्स में मेरे एवरेज स्कोर था अराउंड 60 to 65%. Then I asked my friends, his elder sister, that will this score is good or not? Will this score help me to complete or to pass the level 1? ये सही स्कोर है कि नहीं? So every one of them told me that it is good. Means you are scoring 60 to 65% in mocks, so you will definitely score above 70 in real exam or an exam. Just you have to remain calm. Means I talked with my seniors who passed out their level 1, so I talked with them. So they told me you have to be very calm in exam center while you are giving the exam. So you need to be calm over there, and I will advise you all only means you need to be calm while you are in exam center. जो भी आपने मॉक किया, जो भी आपने जो इंटायर जर्नी में किया, उसको याद करने की नीड नहीं है। what you will do on exam day, that matters a lot. मीन्स कुछ 6 महीने या 7 महीने में आपने कुछ भी किया वो मैटर नहीं करेगा। अच्छा किया, बुरा किया, एग्जाम के दिन पे ख़राब करके, देन यू विल रिग्रेट योर होल लाइफ। देन सो मैंने अपना माइंड काम रखा, 4 मॉक्स दिए मैंने। नाउ व्हेन इट कम्स टू लास्ट वीक बिफोर एग्ज़ाम, तो मैंने फिर से बुक्स लिए। अब मैंने शार्प माइंड से, जहाँ पर की नोट्स थे, मैंने फिर से उसको रिवाइज़ किया। फार्मूलाज को एक फार्मूला शीट बनाई। फार्मूला शीट में मुझे हेल्प नहीं है लॉट, आई कैन टेल यू। मीन्स एग्जाम के एक दिन भी वो फॉर्मूला शीट को आप रेफर कर लोगे ना, मीन्स यू विल डू वंडर्स ऑन योर एग्जाम डे। सो मैंने एग्जाम शीट फार्मूला शीट रेफर किया, एंड जो भी मेरे की नोट्स मैंने बनाए थे बुक के बाजू में ही, तो मैंने उसको रेफ़र किया। जो भी मेरे मिस्टेक्स जो मैं थ्रू आउट द जर्नी में किए, उसको मैंने रीड किया, रेफ़र किया कि मुझे आई डोंट हैव टू रिपीट दीज मिस्टेक्स अगेन ऑन एन एग्जाम डे। सो वो सब मैंने ध्यान किया। 1 वीक और 10 डेज आपको ये पीरियड रखना होगा बिफोर एग्जाम फॉर दीज थिंग्स। सो नाउ दिस अ डे ऑफ एग्जाम। सो एग्जाम के पहले रात को आपको अच्छे से नींद लेनी होगी। जैसे as I said that you need to be relaxed on exam day, so if you take a good amount of rest, if you take a good sleep of 8 to 10 hours, then you will be calm on exam day. और थके हुए रहोगे तो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाओगे, सो काम रहना पड़ेगा आपको। सो 16th Feb को मेरा एग्ज़ाम था। मैंने अपना सेंटर नियर दादर
मैं यहाँ बाइकला में मैंने कहाँ बुक किया था, मैं वहाँ पर गया। मॉर्निंग में मेरा टाइम था 9 o'clock वहाँ पर पहुँचने का। 9 o'clock को एग्जाम स्टार्ट होने का था, बट आई हैव टू रीच देयर 1 hour बिफोर। सो 8 o'clock को मैं वहाँ पर पहुँचना था, मैं पहुँच गया। सो द थिंग्स नाउ, थिंग्स विच यू नीड टू कैरी, एज अ साइड आपको पासपोर्ट तो लेना जरूरी है। कैलसी, जहाँ से आप बुक्स परचेस करोगे वहाँ से आपको कैलसी मिल जाएगा, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर भी आपको कैरी करना है। बुक्स कैरी करना है नहीं करना है डिपेंड अपॉन यू। आई विल एडवाइस यू, मत लेके जाओ बुक्स कोई भी। फॉर्मूला शीट लेके जाओ। आपको अगर आपकी जर्नी बहुत लॉन्ग है, जैसे मेरी जर्नी थी कुछ 1.5 hour की मेरे घर से सेंटर तक, तो मैं फॉर्मूला शीट मैंने कैरी किया एंड सम की नोट्स, जो मेरे नोट्स थे वो मैंने कैरी किए थे, और एथिक्स के कुछ थे मेरे। वो मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू हैव टू कैरी। मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि सब बुक्स कैरी मत करो, दैट्स ऑल, दैट्स माई पॉइंट। मीन्स तो वहाँ पर 8 o'clock को मैं सेंटर में पहुँचा। देन आई टुक माई ब्रेकफास्ट, आई ईट समथिंग। देन 8:45 अराउंड उन्होंने चेकिंग सब हुआ, हमको सब चेकिंग हुआ। तो वन ऑफ द लेडी केम एंड आस्क्ड अस कि कौन रेडी है। 8:45 को हमारा एग्जाम, उन्होंने बोला स्टार्ट कर सकते हो आप अगर आप रेडी हो तो हमको लेके गए। तो 8:45 को हमने एग्जाम स्टार्ट किया। तो देयर आर 2 सेशंस, मॉर्निंग में होता है, एक आफ्टरनून में होता है। तो 8:45 को मैंने स्टार्ट किया। तो 135 मिनट्स का एक सेशन होता है एग्जाम का। तो वो होता है, उसमें आपको पहले 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहले एथिक्स होता है, कॉन्स, इकोनॉमिक्स और कॉर्पोरेट, नहीं कॉन्स, सॉरी एथिक्स, कॉन्स, इकोनॉमिक्स एंड एक फोर्थ भी होता है, मैं कुछ भूल रहा हूँ, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। एथिक्स होता है, कॉन्स होता है, इकोनॉमिक्स, एफ ए होता है, सॉरी एफ ए, ओके। कॉन्स, एथिक्स, एफ ए, इकोनॉमिक्स। फर्स्ट सेशन में आपके ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर आपको हाफ एन आवर का एक ब्रेक मिलता है। मीन्स वो ऑप्शनल ब्रेक होता है, आपको लेना है नहीं लेना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। देन आफ्टरनून के सेशन में जो मेरा 11 को स्टार्ट हुआ था, नहीं 8:45 को हुआ, फिर 9:45, यस समथिंग 10:30 11 को मेरा स्टार्ट हुआ था सेकंड सेशन। तो वो उसमें आपके रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट्स के आते हैं। वो क्वेश्चंस जंबल अप होते हैं, इस सीक्वेंस में नहीं होते हैं, वो जंबल अप होते हैं क्वेश्चंस। तो वहाँ पर आपको थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी होगी। देन मेरा एग्जाम हो गया, 1:30 तक मैं फ्री हो गया। देन आई लेफ्ट माई सेंटर एंड आई रिटर्न बैक फॉर माई होम। तो ये जर्नी थी मेरी। देन 1 month आराम था, सो मैंने रेस्ट लिया। सो मीन्स आफ्टर रिटर्निंग, मीन्स आपको डिस्कस नहीं करना है किसके साथ भी कि क्वेश्चंस क्या थे, या जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको वीडियो बना के भी कुछ किसको रिवील नहीं करना है कि क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। ये भी एक अनएथिकल एक्टिविटी है फ्रॉम, मीन्स अगर आप करते हो तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है कि आप क्वेश्चंस रिवील कर रहे हो किसको, एंड CFA इंस्टीट्यूट ने आपको पकड़ लिया। इफ़ दे फाइंड दैट यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी, सो यू विल बी इन ट्रबल। सो आपको डिस्कस नहीं करना है। एग्जाम हो गया, घर पे आओ, भूल जाओ, ठीक है। मैंने भी वही किया, आई डिड द सेम थिंग। सो घर पे आया, आराम से रेस्ट किया। 1 month हो गया, 28 मार्च को रिजल्ट आया, पास हो गया, खुश हो गया, दैट्स ऑल। सो ये जर्नी थी मेरी CFA लेवल 1 की, जो बेहतरीन थी। मीन्स इट वॉज अबाउट मोर देन 7 to 8 months। जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था, वो फेब मार्च तक खत्म हुई, फेब मार्च। सो इट वॉज अ ब्यूटीफुल जर्नी। मीन्स इसमें मैंने जैसे बताया आपको, नवंबर के मिड में थोड़ा मैं वो गलत ट्रैक पे चला गया था, बट आफ्टर 20 days मैं सही ट्रैक पे आ गया। तो ये सब होता रहता है, फेलियर्स एंड ऑब्स्टेकल्स यू विल डेफिनेटली फेस इन योर जर्नी और इन योर लाइफ। बट उसको जल्दी रिकवर कैसे होना है उससे, हाउ टू रिकवर फ्रॉम दोज ऑब्स्टेकल्स और फ्रॉम फेलियर्स, वो आप पे डिपेंड करता है। और हाउ क्विकली यू रिकवर, एंड यू हैव टू बी रेडी टू फेस दोज ऑब्स्टेकल्स। सो ये था। मीन्स मैंने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स फेस किए थे कि मन नहीं लग रहा है पढ़ाई करने का, आज भी देख लेते हैं, बट नहीं। अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, जो आपने ड्रीम किया है वो आपको चाहिए, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो ऑब्स्टेकल्स को फेस करना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू इफ़ यू वांट रिजल्ट्स। सो दिस इज़ फ्रॉम ऑल अबाउट माई CFA लेवल 1 जर्नी। एंड ऐसा नहीं है कि आप, जो मैंने आपको अपना जर्नी बताया, आपको वही फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको मेन थंब रूल क्या है कि आपको मैक्स टू मैक्स MCQ सॉल्व करने हैं। अगर आपका सिलेबस वन टाइम में रेफर हो जा रहा है, मीन्स फर्स्ट आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, वीडियोस कंप्लीट किए, और एक टाइम आपका रिवीजन हो गया, फिर आपको फोकस करना है क्वेश्चन सॉल्विंग में। क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके मिस्टेक्स फाइंड करोगे, यू विल फाइंड वेयर यू आर लैकिंग, विच आर योर स्ट्रेंथ्स, विच आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, विच इज़ योर वीक सब्जेक्ट। तो उससे आपको मालूम पड़ेगा, ना कि कॉन्सेप्ट्स को मगअप करने से या कोई भी बुक को मगअप करने से। वही नहीं होगा। हम स्कूल में करते थे, कॉलेज में करते थे, ओके, बट यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर MCQ फॉर्मेट में आपका इंटेलिजेंस लेवल टेस्ट होगा। आपका वो नहीं कि मगिंग कितना आप बना सकते हो, हम बना के लिखते थे ग्रेजुएशन में या स्कूल में, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट्स को जितना अंडरस्टैंड करोगे, जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, इंटेलिजेंस बढ़ेगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टू यू।
सो ये सब था। प्लीज़ मेरी जर्नी को फॉलो मत करो, मीन्स अपनी जर्नी खुद लिखो, बट आपको कुछ, मैंने ये वीडियो बनाया कि आप कुछ सीखो, मीन्स मेरी जर्नी से कुछ की नोट्स जैसे मैंने बताया आपको, हाईलाइट किए मैंने बार बार, उससे आप कुछ सीखो और आपकी जर्नी में कुछ आपको हेल्प करे कि आप भी अगर सी एफ ए परस्यू कर रहे हो, देन some key notes from my journey, some important points, some mistakes which I made, which I committed during my journey. So I highlighted on those mistakes, key notes, कहाँ मैंने मिस्टेक की, कहाँ आपको ध्यान देना है, उस सब मैंने आपसे डिस्कस किया। और जो भी डिटेल्स होंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा। डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट, बस फोकस कीजिए और लर्न कीजिए मेरे साथ। दिस इज कुणाल signing off. Thank you for watching this video. Please subscribe my channel. Please like my video. Thank you.